हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस इन द क्यूरियोसिटी। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue his fascinating journey. Try to explore and understand the beautiful world we live in, and for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. Welcome to Wonderful World of Science. Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. Whether it is studying teeny grains of sand or massive mountains, जैसे कि पहाड़ हो गए और रेत हो गए और हो गए जैसे कि गेहूँ, वो सब हो गए. आगे बढ़ते हैं. A leaf of grass or a vast forest. लीफ माने पत्ते, घास और बहुत सारे जंगलें. आप देर इज ऑलवेज, रुकिए 2 मिनट. रहने देते हैं, अपनी जगह पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं. देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हाउ यू हैव यू एवर लुकड अप at the night sky and wondered why the stars shine, or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. The most wonderful things about science is that it is everywhere, from the depths of the ocean to the. अच्छा, मैं ये बता देता हूँ. साइंस माने विज्ञान. विज्ञान एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप जाएंगे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. एक्सपेरिमेंट तो आपको इतना मज़ा आएगा ना. आप एक बार देखिए वीडियोस में, आप रील्स मत देखिए, आप इतना देखिए साइंस में कितना एक्सपेरिमेंट, कितना अच्छा अच्छा होता है, वो सब देखिए. अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं. देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, द माउंटेन रीजन. माने यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, इतने अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, समझिए पहाड़ है और ऊपर आसमान है सुंदर सुंदर. दिस इज कॉल्ड द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. एंड स्टार्ट our topic. Vastness of outer space from what is cooking in the kitchen. Vastness of outer space माने कि आउटर, बाहर के स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, क्या बन रहा है खाने में किचन. टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, क्या हो रहा है प्लेग्राउंड में. सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि माउंटेन रेंजेस था. अब देखिए यहाँ पे अ डेजर्ट, अ कॉस्ट, माने बीच नहीं होता है उसको, वो बीच, समुद्र. देखिए यहाँ पे समुद्र दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, आसमान आसमान तो दिखेगा ही भाई. एंड द डेजर्ट में आपने देखा ही होगा सैंडस्टोन, कितना तेज रेत वाली आनी आती है. तो अभी ये डेजर्ट भी अब वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आता है. और यहाँ पे आएंगे तो एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन. ओशियन के अंदर का व्यू देखिए आप, अंडर द वाटर. जैसे कि फिशेस ओशियन में रहते हैं वो. और यहाँ पे अ गैलेक्सी मीन्स मिल्की वे. एंड कम टू योर टॉपिक. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. एक जिक्सॉ पजल होता है, एक विज्ञान. Every new discovery we make
adds another piece to the puzzle. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover since puzzle. There is no limit to what we can discover since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आया, प्रोवोकिंग, इंटरेस्टिंग आइडियाज़, माने कि जैसे कि आइडिया नहीं, पतलू नहीं बोलता था आइडिया आइडिया, वैसी इंटरेस्टिंग आइडिया आने चाहिए। What we will find out is unsuccess useful in our daily lives. And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home planet Earth. It is the only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on Earth. आप कहाँ पे रहते हो? पृथ्वी पर ही ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। या plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. You might planet समझिए, एनिमल हो गए, प्लांट्स जिससे हम लोग ऑक्सीजन्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाते हैं, तो वो सब भी सर्वाइव करते हैं इधर अर्थ में। एंड यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक कैटरपिलर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म। देखिए ये खा रही है, देखो पत्ते खा रही है, और यहाँ पे काऊ अपने बेबी को दूध पिला रही है, जैसे कि हम लोग गाय का ही दूध पीते हैं ना। एंड यहाँ पे देखिए सीड के ऊपर से लीफ आ रहा है। जब आप पत्ते को उखाड़ते हैं तब आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। 21% ऑक्सीजन अभी इस दुनिया पे अभी है। आप प्लांट्स को तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन बचा कैसे रहेगा, ये आप पहले ध्यान में रखिए, अपने इतना याद रखिए। एग्जाम्पल है, मैं बच्चों को कह दूँ तो ये जो लीफ है, आप एक प्लांट को लगाइए, उसको सुरक्षित रखिए, हर दिन पानी डालिए, तो आप एक दिन सफल होंगे इसमें भी। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, हम लोग खाना खाते हैं। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि डाइवर्स कंट्री, हाँ डाइवर्स कंट्री कहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के भाषाएं होते हैं, इसीलिए इंडिया को डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डाइवर्स कंट्री कहा जाता है। फूड इज सो fascinating across the country. We have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? देखिए आपके लिए ये सब रखा हुआ है। आगे चलते हैं। Along with food, we need water to survive. Water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it ran? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? Do you enjoy drinking cool water in the summer, or showering with warm water in the winter? How do we understand hot and cold? Whether it is water or our own body, when we have fever, finding out how हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। देखिए ये सब रिसाइकल प्रेसिपिटेशन जानते होंगे आप, जब बरसात होती है पानी नीचे गिरता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और जब कलेक्शन होता है पानी से, जब भाप बन के ऊपर जाता है उसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन। इसके बाद बादल कंडेंसेशन करेगा, बाद में प्रेसिपिटेशन, फिर से रिसाइकल होगा। यही आपको बताया गया है इसमें, रिसाइकल फॉर्म है ये।
आगे बढ़ते हैं। देन अगेन देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, द क्लॉथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मैनी अदर थिंग्स. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? देखिए ये कितने अच्छे सुंदर सुंदर तारे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं सुंदर सुंदर से नज़ारे को, आसमान को, पहाड़ों से. आगे बढ़ते हैं. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book, but why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite in it मैं बोला नहीं जा रहा है your spirit of inquiry, and hopefully you will have lots of questions on your mind. Even though you may have not realized you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. जैसे कि जब आप लिखते हो तो आपकी पेन रुक जाती है, कलम जैसे कि रुक जाती है, एंड तब आप गैस करते हो, गैस नहीं कर पाते हो कि इसकी इंक फिनिश हुई है कि इसका आगे का जो इंक होता है कभी कभी ऊपर चला जाता है और नीचे हो जाता है, तो इसी के कारण बीच बीच में वो हो जाता है, इंक नहीं रह पाती, तो पेन स्टॉप हो जाती है. ऐसा भी गैस हो सकता है, बट ज़्यादातर इंक ख़त्म होने पर ही सबको ज़्यादा फोकस होता है. तो ऐसे आप अचानक से स्टॉप हो गई राइटिंग आपकी, माने कि अचानक से पेन वो हो गया, इंक उसका ख़त्म हो गया, तो आप गैस करेंगे अरे इंक ख़त्म हो गई, अब कैसे पेन अब लाना पड़ेगा दूसरा, तो पेन लेके आप दूसरा लिखोगे. तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पे गया चलो रहने दो, आगे बढ़ते. ठीक है, देखो. यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल. आप उसको ओपन करोगे एंड चेक करोगे पहले तो इंक है कि भी नहीं. तो अगर इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट. माने कि उसकी इंक ख़त्म ही हो गई तो आप सही गैस किए हो, माने कि आप एकदम राइट गैस किए हो. बट सपोज यू फाउंड डेट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. नाउ वॉट इंक नॉट फिनिश्ड. आप जैसे कि सपोज किए होगे इंक नहीं फिनिश हुई है तो आप गलत हो. नाउ वॉट वुड यू डू? यू वुड मेक अनदर गैस. Perhaps the ink might have dried up. To test of if this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. आपने इसमें गैस किया ना, इंक ख़त्म हो गई, ये तो मेरे को पता है 100% लोग ऐसे ही गैस करते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो. एंड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि दिस चैप्टर यू हैव वेरी फन, सो you are like my channel please and subscribe also. Thanks. My name is Ayush Yadav and I am your student for teaching you.